ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা আবণ্টিত পুঁজিৰে উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদ আৰু লোকচিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত আন্তঃগাঁথনিৰ মুঠ 12টা বিভিন্ন বিভাগত প্ৰায় 53 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ আধাৰশিলা শুভ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আদি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰা পনুং নৃত্য আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰে আদৰণি জনালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইষ্ট চিয়াং জিলাৰ পাছিঘাট স্থিত উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদ আৰু লোকচিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা আবণ্টিত পুঁজিৰ 53 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 4টা আঁচনিৰ আধাৰশিলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদ আৰু লোকচিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উক্ত অনুষ্ঠানখনি আয়োজন কৰাৰ লগতে অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰাংগণত এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত উপস্থিত হৈ লোকসভা সাংসদ তাপিৰ গাৱে কয়, অৰুণাচল প্ৰদেশত উন্নয়নৰ যি ধাৰা বৈছে এই ধাৰাত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ হৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে যি সন্মান আগবঢ়াইছে এই সন্দৰ্ভত সমূহ অৰুণাচলবাসীৰ হৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ইপিনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আল লিবাঙে তেওঁৰ মন্তব্যত প্ৰকাশ কৰে, উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদ আৰু লোকচিকিৎসা গৱেষণাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আঁচনি আগবঢ়াইছে এই আঁচনিটোৱে ভৱিষ্যত সময়ত উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দৰে সুন্দৰ নাম গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব। সভাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে নিজৰ ভাষণত কয়, উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদটো আৰু এখোজ আগবঢ়াই নিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা লোকচিকিৎসা গৱেষণা চামিল কৰা কাৰ্যক ধন্যবাদ জনায়। নৈসৰ্গিক ভূস্বৰ্গ অৰুণাচল প্ৰদেশক দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধুনীয়া ৰাজ্য বুলি উচ্চ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে উন্নয়নৰ প্ৰতিটো খোজত আগবাঢ়ি যোৱা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব। উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদ আৰু লোকচিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোত সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব, যাতে আমেৰিকাৰ লগতে বিদেশৰ পৰ্যটকেও যাতে ইয়াত আহি চিকিৎসা কৰে আৰু নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে এক নতুন বাট মুকলি কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে। উক্ত অনুষ্ঠানটোত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আল লিবাং, লোকসভাৰ সাংসদ তাপিৰ গাৱ, পাছিঘাটৰ বিধায়ক কালিং ময়ং, উত্তৰ পূব আয়ুৰ্বেদ আৰু লোকচিকিৎসা গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালকো উপস্থিত থাকে। श्री तापिर गाव जी का अरुणाचल आज यहाँ पासीघाट में बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हुआ है, जिसके लिए अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग, पोर्ट्स, वाटरवेज एंड आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे अपना आयुर्वेदिक कॉलेज का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया है, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी शुरुआत किया जाएगा। तो मैं अपने प्रदेश की ओर से अपना यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस इनिशिएटिव के लिए पूरे राज्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं, और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को थोड़ा सा मीडिया का इंटरेक्शन करें। पत्रकार बंधु, आप सबको मालूम है नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास को तेज से आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में जैसे मदद की है, जैसे हमें प्रमुखता दी है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ संभव हुई है। कांग्रेस ने 7 साल राज किया, 7 साल के अंदर उन्होंने सड़क व्यवस्था, पुल कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ 9.5 साल के अंदर जितना काम किया है, 5 लाख करोड़ का काम किया है, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इसलिए उन्होंने अपने एक छोटे से कार्यकाल में मोर देन 60 टाइम ही हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रायोरिटी जोन में उन्होंने रखा। नेशनल डेवलपमेंट जो एजेंडा में प्रायोरिटी जोन में अगर कोई इलाका है वो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट को
और भी उन्होंने ढेर सारे चीजों पर मान्यता दी है। पहली बार के लिए 5 मंत्री को उन्होंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी है और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की जो शक्ति संपदा और संभावना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रचना की है। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्तियों का मन में परम आदरणीय प्रधानमंत्री बसा हुआ है, उन पर लोगों का जो विश्वास है और ये विश्वास की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट एकत्रित हुई है और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9.5 साल के अंदर जो शांति संभव हुई है, शांति की वजह से लोग अब 24 घंटा मेहनत करने लगा है निश्चित रूप से, और सबको सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में सबको मदद की गई है और इसके लिए एक मतलब इज्जत से एक जीवन आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्नर को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। इसलिए मैं मानता हूं नॉर्थ ईस्ट का जो विकास आज संभव हुई है सिर्फ मोदी जी के लिए संभव हुई है और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश का जनता ने मोदी जी को हमेशा समर्थन करते आया है और मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज अरुणाचल का पासीघाट में मल्टीपर्पज हमारा प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास भी हुई है और इस प्रोजेक्ट के द्वारा देश के अंदर पहला फॉक मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनी है पासीघाट में, पहला। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जितना भी सारे हिंदुस्तान में सारे 6 लाख गांव में जितने भी हमारा ट्रेडिशनल हीलर्स है, प्रैक्टिशनर है, उनको विशेष रूप से बड़े एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना शक्ति दिखाने का और इस पर रिसर्च होगा, साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किया जाएगा ताकि दुनिया के बाजार में सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में देश का अलग अलग प्रांतों का साथ अरुणाचल का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हीलर को भी मौका मिले और उसी हिसाब से नई पीढ़ियों को भी इस सेक्टर में रोजगार मिले और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में, स्टार्टअप के सिलसिले में अपने जीवन को खूबसूरत से सजाने के लिए मौका मिले। तो इसी को देखते हुए इतने बड़े संस्था को आज पासीघाट में खड़ा की गई है और इस संस्था को खड़ा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हमें जो मदद मिली है इसके लिए मैं जमीन के सिलसिले में अलग अलग सिलसिले में जो मदद मिली है इसके लिए मैं अरुणाचल की बड़े लोकप्रिय युवा नेता हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके जितना भी सहयोगी मंत्री है, विधायक है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे दोनों साथी सांसद हमारे कपिल गांव जी, किरण रिजिजू जी, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। तो हम पत्रकार बंधुओं से भी यही आग्रह करता हूं, आप भी सहयोग करते रहिए। ये संस्था आपकी है, ये संस्था देश के है और हम चाहते हैं कि अरुणाचल मेडिकल ट्रेवल टूरिज्म के सिलसिले में देश की प्रमुख स्थान बने क्योंकि यहाँ प्रकृति में जो संपदा और शक्ति बसा हुआ है, फ्लोरा फोना जो है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मुझे लगता है इन शक्तियों को हमको उजागर करना होगा और हमारे जो यहाँ पर्यावरण को सही सुरक्षित करते हुए हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में हम मेहनत करेंगे। धन्यवाद। Benefit of the nation with special focus on the northeastern region. The institute intends drugs and therapeutic product development based on traditional knowledge. The institute also aims to support conservation and sustainable use of these traditional practices and the biodiversity, which is pivotal these kind of knowledge base. The vision has culminated to this very moment. कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हम सभी के लिए। आज हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी जो यहाँ आके इतने सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट का जो यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन जो ले किया है, आने वाला दिनों में हमारे यहाँ पे आयुष कॉलेज के लिए जो एक सक्सेसफुल चलने के लिए जो सपोर्ट दिया है केंद्र सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो आप सभी को बधाई देते हुए साथ साथ में राज्य सरकार की ओर से अरुणाचल के पूरे जनता की ओर से हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी को और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने पूरे जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फाउंडेशन स्टोन जो यहाँ पे ले किया है, कुल मिला के 12 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। इसमें क्लासरूम 460 स्टूडेंट्स, इसके बाद
लेक्चर हॉल डेवलप किया जाएगा, 14 डिपार्टमेंटल हॉल्स यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए और डीन के लिए ऑफिस, सेमिनार कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी हॉल, डाइसेक्शन हॉल, फार्मेसी, क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी, कैंटीन, कॉमन रूम्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके अलावा फिर बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और जितने भी जो स्टाफ्स के लिए अलग अलग जो कैटेगरीज के बंगलो है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और डायरेक्टर के लिए भी बंगला बनाया जाएगा। तो कुल मिला के जो अभी लागत जो कहा है कि 100 करोड़ में इसमें अभी इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की ओर से किया जाएगा। आप सभी को पता है कि भले ही अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे कोना में हम लोग हैं, मगर केंद्र सरकार का हमेशा सपोर्ट हम लोगों को ऊपर में रहा है। अरुणाचल में भी ऐसे कई सारा नेशनल इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट, खास करके एकेडमिक से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे अरुणाचल में फंक्शनिंग चल रहा है। नेरिस जो उन जमाने में नेरिस जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का टेक्निकल एक यूनिवर्सिटी हम लोगों का यहाँ निर्जुली में चल रहा है। इसके बाद NIT वो जोते में चल रहा है और फिल्म इंस्टीट्यूट जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट से अरुणाचल प्रदेश में अभी फिल्म इंस्टीट्यूट का भी वो काम वहाँ पे चल रहा है। तो आने वाला दिनों में हमारे जितने भी जो युवा लोग अलग अलग क्षेत्र में जो इंटरेस्ट रखता है उन सभी के लिए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का यहाँ पे सपोर्ट भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है। एक बार नेशनल लेवल का एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज आने के बाद आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ने के लिए अलग अलग राज्यों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट का विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। तो साथ में कंपटीशन का एक माहौल, एक बहुत हेल्दी कंपटीशन का माहौल भी बनाया रखेगा। और उससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये अपना जो देश भारत जो है कल्चरली बहुत ही डाइवर्सिटी है, तो उस कल्चरल को भी एक बाइंडिंग करने का एक बहुत अच्छा एक अवसर है। सो उसी लाइन में आप सबको पता है कि यहाँ पे जो अपना पुराना 2008 में जो शुरुआत हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन 2008 में, मगर 2021 में जब से 2019 इलेक्शन के बाद में सर्बानंद जी वहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना और जब उनको आयुष का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला तो उस वक्त उन्होंने इनिशिएटिव लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यूनियन कैबिनेट में क्लियर हो गया कि अभी इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका पैरामीटर जो पहले नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन में जो सीमित था उसको अभी आयुर्वेद भी यहाँ पे ऐड कर दिया और साथ साथ फोक मेडिसिन का रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे शामिल कर दिया। हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा यहाँ पे बहुत अलग अलग ट्राइब्स हम लोग बसे हुए हैं, जनजाति बसे हुए हैं, बहुत सारा कम्युनिटीज बसे हुए हैं और सदियों से ही ऐसे ट्राइबल और हमारे नॉर्थ ईस्ट का कम्युनिटीज अपना पुरानी जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हीलिंग उसको ऊपर में हम लोग बहुत पहले से जाना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें पहचान दी है और जो जिस हिसाब से उन्होंने देश और विदेश की जनता को नॉर्थ ईस्ट का शक्ति, संपदा और संभावना के बारे में जानकारी दी है, ये अतुलनीय है। हमने वो काम नहीं किया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं, देश का अस्तलस भी है, सबसे मजबूत इलाका है। अगर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनना है तो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का विकास होना अति जरूरी है, आवश्यक है। तो इसी उपलब्धि से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल में नॉर्थ ईस्ट को जिस हिसाब से उन्होंने सपोर्ट की है 5 लाख करोड़ हमें सपोर्ट मिली है। चाहे सड़क व्यवस्था हो, पुल हो, एजुकेशनल हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, टेक्नोलॉजी हो, हर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से मदद की है, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश अपना शक्ति दिखाने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश चाहे सिक्किम हो या त्रिपुरा हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, नागालैंड हो या मेघालय हो,
अरुणाचल प्रदेश हो या असम हो, आज प्रदेश ने आज जिस हिसाब से अपने शक्ति दिखाने का काम किया है, इसकी वजह से कम दिनों के अंदर आज देश के अंदर ही नहीं दुनिया में नॉर्थ ईस्ट ने अपना पहचान बनाया है। और ये सब लोगों ने महसूस की है। आज नॉर्थ ईस्ट एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है देश और विदेश के जनता के लिए। और आज यहाँ पर्यटक का जिस हिसाब से विजिट होने लगा है और सब लोगों का मन में नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए उनकी मन में जो भी इच्छा पैदा हुआ है, जो उनकी रुचि बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख बिंदु बनने जा रहा है। दीपिका बोरा रिपोर्ट, प्रतिदिन लाइव असम।